Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol, Yudham Hari Nam Sanjitama Yudhiki Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Prabhupada. Thank you so much. Jai Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Gaur Nitai Sundar ki Jai. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. So welcome everyone. I think Rasandan Prabhu has come. Ronnie Prabhu has come. Yes, Prabhu, he is there. Okay. Hare Krishna. So welcome everyone to our Guru Ashtakam sessions. So we are now coming towards the end of our series, and we have His Grace Rasanand Prabhu. So we heartily welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Rasanand Prabhu ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. So, I hope everyone is doing well. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Please just. So, today is on Guru Vastukam. Om Jnanatimirambhasya Jnanam Janashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Pashyati Deshutarine
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are discussing from Guru Vastakam by Vishnu Chakravarti Thakur. रोज सुबह एक्चुअली हम गुरुवाष्टकम से हमारा एक्चुअली दिन की शुरुआत होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज। हमें इसका मीनिंग समझना काफी जरूरी है, क्योंकि हम जो प्रार्थना है गुरुवाष्टकम, ये और इंटेंसिटी के साथ हम प्रार्थना कर सके हर रोज सुबह। और ये श्लोक 8 श्लोक में बेसिकली आध्यात्मिक गुरु की गुण बताते हैं, आध्यात्मिक गुरु की महिमा बताते हैं, और क्यों आध्यात्मिक गुरु की हम वर्शिप करते हैं वो भी क्लैरिफाई करते हैं। और खास करके कलयुग में आध्यात्मिक गुरु एक बोनाफाइड एक सत गुरु को हम कैसे पहचान सकते हैं, खास करके ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा बताते हैं। तो इसीलिए लास्ट में हम लोग ये कहते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु, गुरु मतलब उस गुरु को, उस गुरु की चरण वंदना करते हैं जो गुरु में उस क्वालिटीज है जो हम फर्स्ट 3 लाइन में वर्णन किए हैं। उस 3 लाइन में जो गुण है ऐसे गुरु की चरण वंदना करते हैं। तो ये उदाहरण देते हैं, आध्यात्मिक गुरु का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जिस प्रकार किसी के अगर शरीर में आग लग जाते हैं तो वो तुरंत पानी की ओर भागते हैं, तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम सबको इस प्रकार कष्ट मिल रहे हैं। ए विषय हलाहले दीवानिशी किया जले। तो भौतिक इच्छाओं की वजह से, भौतिक वासना के कारण दिन रात हमारे हृदय जलन हो रहा है। तो इसलिए हमें भी आध्यात्मिक गुरु के चरण में शरण लेना जरूरी है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु या गुरु शब्द का अर्थ है, गु मतलब है अंधकार, अंधेरा, और रू मतलब है रिमूवर, जो हटाते हैं। तो गुरु मतलब वो है जो हमारे अंधेरा को दूर करके ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हमें ये शास्त्र के ज्ञान मिलते हैं। तो कभी कभार इस प्रकार वर्णन जब सुनते हैं, हम पिछले क्लास में सुना साक्षात हरे त्वेना, हमें लगता है ये कैसे हो सकते हैं, हम तो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, हमारे प्रयास से हम इतना कुछ जान पाए, आध्यात्मिक गुरु की क्रेडिट कहाँ पे। लेकिन भक्ति में हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना मैच्योर होते जाएंगे, हमें पता चलेगा एक्चुअली हमें जो कुछ मिला आध्यात्मिक लाइफ में ये सब आध्यात्मिक गुरु की कृपा। एक तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि षडंग शरणागति होइबे जाहर ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हम भगवान कृष्ण से जो प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थना भगवान कृष्ण नहीं सुनते। सिर्फ षडंग शरणागति, जिस भक्त में 6 प्रकार की शरणागति दिखते हैं, अनुकूल से संकल्पात, प्रतिकूल से विवर्जन, इस प्रकार शरणागति देखते हैं, उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान कृष्ण सुनते हैं। तो इसलिए हमें गुरु या वैष्णव के पास जाना चाहिए कि हे आध्यात्मिक गुरु, हे गुरुदेव, हे वैष्णव, आप कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भगवान के पास। तो इसलिए आज के श्लोक में हम देखेंगे कि यस्य प्रसादत भागवत प्रसादो, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, हाँ, यस्य मतलब जिनकी, जो आध्यात्मिक गुरु, प्रसादत मतलब प्रसन्न होने से,
भगवत मतलब भगवान कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। सिंपल मीनिंग इस श्लोक की। तो आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और आध्यात्मिक गुरु जिससे अप्रसाद, जो अप्रसन्न होने से नागोती कुतोपी, जिनका इस कहीं नहीं कुछ भी कोई नहीं गोती मिलते हैं, मतलब इस भौतिक संसार तो छोड़ दीजिए, कभी मतलब किसी और लोगों में भी उनकी कोई गति नहीं मिलती। तो फर्स्ट इसमें मतलब योग प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते, और जो आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होने से भगवान तो छोड़ दीजिए, पूरा त्रिभुवन में उनका कोई गति नहीं रहती। इसलिए हम रोज सुबह गुरु पूजा में ये भी गाते हैं, एवे यश घोषुक त्रिभुवाना, कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरुदेव की महिमा तीनों लोक में प्रचारित हो, प्रकाशित। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा हम कीर्तन नहीं करते, या आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न हो जाते, तो तीनों लोगों में मतलब हमें कोई कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें बताते हैं, आध्यात्मिक गुरु ये प्रसन्न होते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है, प्रहलाद महाराज के एपिसोड में। प्रहलाद महाराज भागवतम में हम देखते हैं कि जब भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध करने के पश्चात फिर भी क्रोधित थे, शांत नहीं हो रहे थे। ब्रह्मा, शिव, इवन लक्ष्मी देवी के, भगवान विष्णु की पत्नी, फिर भी भगवान विष्णु को नृसिंहदेव शांत नहीं कर पा रहे थे। और उस समय ब्रह्मा जी ने सलाह दी, चूंकि प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए प्रहलाद को जाना चाहिए। यहाँ पर ये ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी देवी फेल हो जाते, प्रहलाद महाराज जाकर प्रार्थना करते। तो प्रार्थना में शुरू में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से ये कहते हैं, एवं जनम निपतितम प्रववाहि कोपे कामहाभि कामम मनुजो प्रपतन प्रसंगान कृत्तात्मसात् सुरशिना भगवद गृहीत सोहं कथंगनो विश्रय तव भृत्य सेवाम। इसमें बताते हैं कि एवं जनन निपतितम प्रववाहि कोपे, प्रहलाद महाराज भगवान से बता रहे हैं, जबकि भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें गुरु की गुणगान कर रहे। एवं जनन निपतितम, कि मैं तो निपतितम मतलब पतितम, फॉलन, मैं गिर गया था। कहाँ पे? प्रववाहि कूपे, कूप मतलब क्या है? कूप मतलब कुआं। तो मैं इस भौतिक संसार रूपी कुआं में गिर गया था, अंधा कुआं में। और कामा भी कामम अनुय प्रपतन प्रसंगात, और उस अंधा कुआं में जनरली जिस कुआं, अंधा कुआं मतलब क्या है? जिस कुआं बहुत पुराना कुआं है जिसमें पानी नहीं है, सूख गया, उस कुआं में पानी तो नहीं रहता है, लेकिन जानवर, सांप, बिच्छू, ये इस प्रकार के प्राणी रहते। तो लेकिन ये भौतिक संसार भी एक अंधा कुआं जैसे, जिसमें पानी नहीं है, सुख नहीं है, ड्राई है। और उसमें सांप बिच्छू क्या है? कामा भी काम मनुजा, भौतिक संसार में सुख भोग करने की इच्छाएं। तो कामा भी कामम अनुजा प्रपतन प्रसंगात, और ये बैड एसोसिएशन भौतिक संसार में, जो ये एक प्रकार सांप बिच्छू जैसे मुझे हमेशा एक प्रकार से दुख पहुंचा रहे थे, और मैं गिर गया था इस अंधा कुआं में, भौतिक संसार रूपी। लेकिन हे भगवान कृष्ण, हे भगवान नृसिंहदेव, कृतात्म साथ सुरशीर्ण भगवान गृहीत, लेकिन मुझे कृपा करने के लिए, मुझे उद्धार करने के लिए उस अंधा कुआं से शूरशीर्ण भगवान गृहीत, और शूर ऋषिना, शूर मतलब देव और ऋषि मतलब ऋषि, देवर्षि। कौन आया? देवर्षि। और इसमें नारद मुनि को क्या एड्रेस कर रहे हैं? भगवान। गुरु को कभी कभार भगवान भी एड्रेस करते। भगवान गृहीत, उस नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि आए थे मुझे उस अंधा भौतिक संसार रूपी अंधा कुआं से उद्धार करने के लिए। सोहम कथम नु विसृज तब वृत्त सेवम, हे भगवान नृसिंह, कि स अहम कथम नु विसृजे तब वृत्त सेवा। तो मैं किस प्रकार से आपका जो ये सेवक, जो नारद मुनि, तब वृत्त, आपके जो सेवक नारद मुनि, उनका सेवा छोड़ सकता हूँ।
बल्कि मेरा फर्स्ट ड्यूटी है कि आपकी जो सेवक है नारद मुनि की सेवा करना। तो ये नारद प्रहलाद महाराज इसमें बताते हैं कि फर्स्ट ड्यूटी क्या है? हे भगवान, आपका नहीं, आपके जो सेवक नारद मुनि, जो मेरा गुरुदेव, उनकी सेवा करना, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। और ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका में, प्रभुपाद लिखते हैं मार्किने भागवत धर्म में जाते जाते प्रभुपाद ये लिखते हैं, ये भजन लिखते हैं मार्किने भागवत धर्म। तो उसमें प्रभुपाद लिखते बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, इस प्रकार लिखते हैं। sorry, not this one, another one, I think that is वृंदावन भजन। या तो प्रभुपाद उसमें लिखते लिखते प्रभुपाद जनरली वो एक बंगाली छंद में जाते हैं कविता जब लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद को तब ये तुरंत ये श्लोक याद आया और प्रभुपाद ने उस बंगाली रिदम के बीच में ये श्लोक लगा दिया, एवं जनन निपतितम प्रभुवाई को। प्रभुपाद भी याद कर रहे थे कि मैं कैसे जो मेरे गुरु महाराज भक्त सिद्धांत ठाकुर को भूल सकता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट भागवत गीता में, अलग अलग शास्त्रों में, भागवत में हम बार देखते किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की जो सेवा है ये भगवान की सेवा से इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसमें खास करके ये बता रहा है कि यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, जो आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करते भगवान ऑटोमेटिकली उनके प्रति प्रसन्न हो जाते। ये देवकी नंदन दास एक वैष्णव को भी लिखते हैं, जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, जिसके प्रति आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते कोनो विघ्न सेव नाही हन अवसन्न, किसी भी बाधाएं विघ्न भौतिक संसार के जो कठिन है किसी भी चीज उनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। इस प्रकार पावरफुल, इसलिए शास्त्रों में कहते हैं यस्य देवी पराभक्त यथा देवी तथा गुरु। तो सिर्फ जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है ऑटोमेटिकली एक भक्त के हृदय में प्रकाश हो जाते हैं। जिस भक्त में आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागति है, पूर्ण विश्वास, फर्म कन्विक्शन है आध्यात्मिक गुरु के जो वाणी है उसमें, तो भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों के वाणी में जो अगाध विश्वास है उस भक्त के हृदय में सभी शास्त्रों के निचोड़ ऑटोमेटिकली आ जाते। और इसके उदाहरण आते महाभारत में उपमन्यु की स्टोरी आते। धौम्य ऋषि थे, उनके 3 शिष्य उपमन्यु, वेद, आरोनी, और ये द्रोणाचार्य उनके स्टूडेंट को शिक्षा देते वक्त पढ़ाते थे कि गुरु भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। उसके उदाहरण देने के लिए उन्होंने धौम्य ऋषि के 3 शिष्य को उदाहरण देते थे, जिसमें उपमन्यु है। और उपमन्यु का स्टोरी जानते हम लोग। उपमन्यु किस प्रकार उनके गुरु ने उनको भिक्षा करने के लिए मना कर दिया, उनको दूध पीने के लिए मना कर दिया, उनको अलग से भिक्षा करने के लिए मना कर दिया, गुरुदेव की जो भिक्षा उसमें से कुछ उठा के रखने के लिए मना कर दिया। तो इसमें जो जिस प्रकार देवकी नंदन दास लिखते हैं कि कोनो विघ्न कितने भी बाधाएं आए, आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न है तो वो कभी भी किसी भी डिस्टर्बेंस उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये आध्यात्मिक गुरु की महिमा। तो यस्य प्रसादत भगवत, आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते, और अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो जाते। इसका कई उदाहरण है भागवतम में, जैसे इंद्र का उदाहरण है। इंद्र कई बार उनके आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के चरण में अपराध किए कि स्वर्ग के राजा कभी कभार सम्मान नहीं करते थे। एक बार तो बृहस्पति आए थे, जब बृहस्पति आए थे देवताओं के गुरु, तो इंद्र बृहस्पति को देखने के बाद इंद्र विचार करने लगे, देखो रोज तो गुरु महाराज को देख के उठ के खड़ा होकर दंडवत करते, एक दिन नहीं करने से क्या नुकसान। हमें भी लगता है रोज करते दंडवत, शुरू में 2-3 साल तो किया दंडवत, अभी थोड़ा दूर से कर देते, गुरु महाराज तो देख नहीं रहे, हमें क्या फर्क पड़ते। और गुरु महाराज अभी है नहीं, फोटो में दंडवत कर लेंगे या प्रणाम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता। तो इंद्र के मन में इस प्रकार विचार है कि रोज प्रणाम करते, कुर्सी से उठ के खड़ा होकर, एक दिन प्रणाम नहीं करने से क्या नुकसान। बट that became great offense for इंद्र। तो बृहस्पति नाराज हो गए, बृहस्पति स्वर्गलोक छोड़ के चले गए कि हम तुम लोग मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं हो, सम्मान नहीं देते हो आध्यात्मिक गुरु को। यज्ञ करने के लिए पुरोहित चाहिए, अब बृहस्पति तो है नहीं, उनको किसी ब्राह्मण चाहिए।
तो उन लोगों ने किसको अपॉइंट किया? विश्वरूप को। त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा ऋषि काफी पावरफुल व्यक्ति थे, उनके पुत्र ब्राह्मण एक प्रकार से विश्वरूप को अपॉइंट किया और विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे। लेकिन विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में जब आहुति देते हैं तो नियम है जिस व्यक्ति के ओर से आहुति दी तो उनके नाम उच्चारण करते, जैसे इदम अग्नाय स्वाहा, अग्निदेव की ओर, इदम इंद्राय स्वाहा। लेकिन विश्वरूप के साथ क्या होता है? विश्वरूप के पिता त्वष्टा जो है वो देवकुल से थे, लेकिन विश्वरूप के जो माता है वो असुर कुल से थी। इसलिए विश्वरूप जब मंत्र पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके माता के प्रति प्रेम था और पिता के प्रति भी, इसलिए जब विश्वरूप मंत्र उच्चारण कर रहे थे, इंद्र और बाकी देवता लोग बैठे हुए थे सामने, उनके सामने यज्ञ कर रहे थे, तो जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे, इदम अग्नाय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम गणेशाय स्वाहा, लेकिन जोर से ये बता रहे थे। और थोड़ा धीमे धीमे बोल रहे, इदम रावणाय स्वाहा, इदम हिरण्यकशिपु स्वाहा, क्योंकि उनके माता कुल को भी देखना है। अब इंद्र को पता चल गया ये तो चुप चुप के असुर को भी यज्ञ भाग दे रहा है, क्योंकि उनके माता असुर कुल से थी। तो इंद्र क्या कि विश्वरूप का सिर अलग कर दिया। अब देखो इसमें भागवत में प्रभुपाद लिखते एक अपराध की वजह से, सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध। अब कितने अपराध एक के बाद एक अपराध करते जा रहा है, तो आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध सबसे महा अपराध माना जाते हैं। गुरु अप्रसन्न होते या गुरु की निंदा करते, गुरु के आदेश पालन करने में अगर असमर्थ होते तो एक के बाद एक अपराध आ जाते। तो उन्होंने विश्वरूप को वध कर दिया। अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा जो है, त्वष्टा बाद में ध्यान करते हुए मंत्र उच्चारण के द्वारा एक पुत्र जन्म दिया कि जो इंद्र का वध का कारण बनेगा। लेकिन मंत्र उच्चारण करते वक्त उन्होंने गलती से बोल दिया कि जो इंद्र से वध होगा, तो नहीं हो, तो उनका पुत्र जन्म हुआ। वृत्रासुर की कहानी आप लोग जानते हैं। लेकिन इस प्रकार से इंद्र अप्रसन्न किए भगवान को, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु का सम्मान नहीं दे पाए। तो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, कहीं भी उनको कोई गति नहीं मिलती आध्यात्मिक गुरु के चरण में अगर अपराध करते। इवन हम देखते इंद्र बृहस्पति के चरण में अपराध किस प्रकार, भगवान कृष्ण के चरण में भी अपराध किस प्रकार। देखिए आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध करने से वो अपराध धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाते। इंद्र चूंकि आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध किए, इसलिए भगवान कृष्ण के चरण में भी अपराध कर बैठे कि ब्रजवासी जो ये मूर्ख है, ये मेरी पूजा नहीं करके ये एक बालक की पूजा कर रहा है। और इसका और एक उदाहरण, जिससे अप्रसादत नगति कुतोपि, इसका और एक बेस्ट एग्जांपल है चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न हो जाते, जिनके प्रति भगवान कभी उनके प्रति प्रसन्न नहीं होते, वो कौन है? रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी के उदाहरण है। रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, ये दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी के चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु। लेकिन ईश्वरपुरी जो है आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते थे। माधवेंद्रपुरी आखिरी समय में, माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार हो गया था, माधवेंद्रपुरी चल नहीं पाते थे, बिस्तर से ऊपर जा नहीं पाते थे, और बिस्तर में ही उन्होंने टॉयलेट लेट्रिन पेशाब करते थे, क्योंकि वो उनका ये नहीं था। और ये जो है ईश्वरपुर उस समय उनके बिस्तर साफ सुथरे करते थे, परिष्कार करते थे। लेकिन ये जो है रामचंद्रपुरी, ये निंदा करते थे, है ना। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी उस समय रोते थे, उस समय बिस्तर में बैठ के, और एक प्रार्थना करते थे, ओ हे दीन दयार्द मथुरा नाथ, कि हे मथुरा नाथ कृष्ण, हे दीन दयाल कृष्ण, आपकी दर्शन कब मिलेगी। इस प्रकार प्रार्थना करते करते रोते थे कि आखिरी समय उन्होंने शरीर छोड़ रहे थे। और ये जो रामचंद्रपुरी आके गुरु महाराज, आप इतना मूर्ख क्यों? ये कितना मूर्ख शिष्य है कि आप रो रहे हैं भगवान के लिए। अगर शास्त्र ज्ञान हो तो कोई नहीं रोते भगवान के लिए, आपको शास्त्र ज्ञान की जरूरत है, वेद वेदांत की। आप माधवेंद्रपुरी उसमें, माधवेंद्रपुरी बहुत उनको डांटा कि मैं कृष्ण विरह में रो रहा हूं यहाँ पे, और ये मूर्ख है मुझे उपदेश देने के लिए। लेकिन कहने का मतलब है माधवेंद्रपुरी अप्रसन्न थे
रामचंद्रपुरी के प्रति। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं, जार प्रति गुरुदेव हान सॉरी यस्य अप्रसाद न गति कुत होती, जो आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होते हैं उनके प्रति कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते। और आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध करने के कारण धीरे धीरे उस रामचंद्रपुरी मंद बुद्धि के कारण चैतन्य महाप्रभु के चरण में भी अपराध कर बैठे। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में थे उनकी कामरा में, एक दिन ये रामचंद्रपुरी जाके चैतन्य महाप्रभु के पास बोलते, महाप्रभु आपके घर में से चीटी आ रहा है, चीटी की लाइन आ रहा है, तो जरूर आप घर के अंदर सन्यासी होकर कुछ मिठाई छुपा के रखा। तो सन्यासी को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को दोष देख रहे हैं, तो आपके घर से चीटी की लाइन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में मिठाई छुपा के रखा है, जरूरी नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखिए कितना विनम्र है। चैतन्य महाप्रभु इसको सिंसियरली लिया। अगले दिन से चैतन्य महाप्रभु भोजन आधा कर दिया। तो नहीं, ये एक्चुअली रामचंद्रपुरी मेरे गुरु जैसे, उन्होंने जो बताते हमें स्वीकार करना चाहिए। सब भक्त लोग बोले नहीं महाप्रभु, वो निंदुक है रामचंद्रपुरी, आप उसके बात पर आके क्यों आप भोजन कम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मुझे सुनना चाहिए उनकी बात। फिर लेकिन इसमें दो चीजें ये श्लोक में जो बता रहे, यस्य अप्रसाद नगति कुतोपि, ये आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इनके देखिए दो शिष्य हैं, एक माधवेंद्रपुरी के और भी शिष्य थे, लेकिन ये दो शिष्य जगन्नाथपुरी में थे, ईश्वरपुरी और ये रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी आध्यात्मिक गुरु को अप्रसन्न किए माधवेंद्रपुरी, लेकिन ईश्वरपुरी उनकी सेवा की। तो परिणाम क्या है? परिणाम है ईश्वरपुरी चूंकि उनके आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उनके शिष्य के रूप में आया। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ईश्वरपुरी को क्या मिला? चैतन्य मिला, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किए। और रामचंद्रपुरी चूंकि निंदा की उनके आध्यात्मिक गुरु को, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित हो गए। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु से। एक जन आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृपा नहीं दी, उनके शिष्य के रूप में आ गए। और एक जन आध्यात्मिक गुरु को अप्रसन्न किया, चैतन्य महाप्रभु कृपा का भी नहीं मिले, तो कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा तो जो दो प्रकार के एक्चुअली वैष्णव ऑफेंस होते हैं। एक नॉन डिवोटिस जो है, डिवोटिस के चरण में अपराध करते वैष्णव के, तो वैष्णव होकर फिर वैष्णव के चरण में अपराध करते। तो अभक्त अगर किसी भक्त के चरण में अपराध करते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? और भक्त के चरण में अपराध करते हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं? जैसे इसमें उदाहरण, भक्त के चरण में अपराध किया रामचंद्रपुरी ने, तो भक्त जब भक्त के चरण में या एक वैष्णव और एक वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, तो वो कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाते हैं, ये परिणाम है। लेकिन जब अभक्त भक्त के चरण में अपराध करते हैं, वो शारीरिक फिजिकल उनको प्रॉब्लम होता है, फिजिकल डिजीज वगैरह होते हैं। पहले ज्यादातर ये लेप्रोसी होता है फिजिकल, लेकिन भक्त को इसने उससे भी खतरनाक कृष्ण प्रेम से वो वंचित रह जाएगा। इसलिए दैट्स इज वेरी डेंजरस, स्पेशली आध्यात्मिक गुरु के चरण में अपराध। आध्यात्मिक गुरु अगर अप्रसन्न हो जाते देन इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे थे, आचार्यं मांग बीजानियम न अवमानित कर इच्छित, क्योंकि आचार्य जो आध्यात्मिक गुरु है उनको क्या समझना चाहिए? मेरा स्वरूप। तो एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की निंदा करना तो भगवान की निंदा करना, तो कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो अभक्त भक्त के चरण में अपराध करते वो इस प्रकार फिजिकल प्रॉब्लम उनको होते। जैसे चपल गोपाल है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चपल गोपाल ये श्रीवास ठाकुर संकीर्तन करते थे मायापुर में, और श्रीवास ठाकुर के प्रति ईर्ष्यालु होकर श्रीवास ठाकुर के आंगन के घर के सामने एक रात को ये देवी पूजा के, दुर्गा पूजा के सामान रख दिया उन्होंने, कि कुछ बकरी की मांस वगैरह रख दिया, कुछ लाल फूल रख दिया, सिंदूर रख दिया, ताकि सबको बताने के लिए, उनके डिफेम करने के लिए। तो अगले दिन सुबह आके श्रीवास ठाकुर समझ गए किसने किया, और श्रीवास ठाकुर सबको, गांव के सबको बुला के बोलते, देखो देखो मैं असल में हर रोज रात को नाटक करता हूँ, मैं नाटक करता हूँ कि मैं दिखाता हूँ कि मैं संकीर्तन करता हूँ, असल में मैं देवी पूजा करता हूँ।
पता नहीं है चपल गोपाल का क्या हुआ था। चपल गोपाल को लेप्रोसी कोहरा हो गया था उस समय, और गंगा के किनारे में बैठकर चपल गोपाल सबसे माफी मांग रहे थे कि क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से माफी मांग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्षमा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु क्या बताया कि चैतन्य महाप्रभु बताए तुम श्रीवास ठाकुर जब तक क्षमा नहीं करेंगे हम क्षमा नहीं कर सकते। श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांगने के पश्चात ही चैतन्य महाप्रभु क्षमा किए। तो उस लीला में हम ये देखते हैं जैसे अप्रसाद नगोती कुतोती, कि आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होने से भगवान भी अप्रसन्न हो जाते ऑटोमेटिकली। आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न। हाँ हरे कृष्णा। सॉरी आवाज नहीं आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? सार्वभौम भट्टाचार्य अमोघ अपराध करता है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद जो महाप्रभु के लिए अपराध करते तो हैजा हो जाता है उसे। हाँ गुड एग्जांपल। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद हैं वो भी इस प्रकार अपराध करते हैं। ओके, और कोई उदाहरण जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होने से भगवान भी अप्रसन्न हो गए, या आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो गए? एनी अदर एग्जांपल? रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी के है ना, जो उनको आके कुछ कहते हैं और उनको लेप्रोसी उनका नाक में हो जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। रूप गोस्वामी, ओके, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। हरिदास ठाकुर का पास्ट टाइम में भी एक आदमी जो होता है वो हरिदास ठाकुर सपोर्ट नहीं करता तो उसका पूरा शरीर में खराब हो जाता है। दैट इज गोपाल चक्रवर्ती। गोपाल चक्रवर्ती, बट नो दैट इज वैष्णव ऑफेंस डेफिनेटली। हम स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो गए, या आध्यात्मिक गुरु अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो गए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री रामानुजाचार्य जी के एक डिसाइपल थे जो मतलब एक राजा के पास जाते हैं, मतलब ही हिमसेल्फ प्रेजेंट एज रामानुजाचार्य, फिर उनकी आंखें निकाल देते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो रामानुजाचार्य feels very sad and he prays to Lord and Lord gives back him his eyes. वो भी एक एग्जांपल। ओके, गुड। इवन भागवतम में हम 8th कैंटो में देखते हैं, of course that is not exactly guru but it's like guru, spiritual, शिक्षा गुरु। दुर्वासा मुनि जब एक बार कैलाश जा रहे थे और उस समय भगवान विष्णु ये जो प्रसादी माला लेकर जा रहे थे, भगवान विष्णु से भेंट करने के बाद उनको ये माला मिली, तो स्वर्गलोक होकर जा रहे थे और इंद्र को दुर्वासा मुनि वो माला पहना के देते कि ये भगवान विष्णु की प्रसादी माला तुम ग्रहण करो। लेकिन इंद्र असम्मान के, इंद्र के मन में घमंड आ गया थोड़ा। इंद्र उस माला को किसको पहना देते? ऐरावत, इंद्र की जो हाथी है। अब हाथी भी समझ के मेरे जो प्रभु है इनके बहुत ज्यादा घमंड आ गया, हम थोड़ा उनको शिक्षा देते। हाथी उस माला को अपने सूंड से नीचे फेंक के पैर से कुचल दिए और दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर भगवान विष्णु की माला है और तुम आध्यात्मिक गुरु के एक जो उपहार है इसको तुम सम्मान नहीं कर पाते, तो इसलिए भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि नाराज हो गए। दुर्वासा मुनि इस प्रकार श्राप दी कि ये स्वर्ग लोक से लक्ष्मी देवी अप्रकट हो जाएंगे, मतलब ये सौभाग्य लक्ष्मी चले जाएंगे, और इसलिए असुर लोग आक्रमण कर दिया और देवता लोग स्वर्ग राज्य खो दिया। और उसके बाद एक्चुअली भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी अप्रसन्न हो जाते देवताओं के प्रति, क्योंकि उन लोगों ने इस प्रकार दुर्वासा मुनि का सम्मान किया। यह भगवान विष्णु की जो माला है, और तब भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं। देन भगवान विष्णु ये जो देवताओं हैं, इंद्र आदि देवता हैं, उनको सलाह देते कि समुद्र मंथन करने के लिए। ये समुद्र मंथन से पहले होता है बैकग्राउंड, कि तुम्हें अभी अमृत प्राप्त करने की जरूरत है, तभी तुम स्वर्ग राज्य वापस प्राप्त कर सकते। तो उसमें भी हम देखते हैं कि इस प्रकार उनको असम्मान करने की वजह से इस प्रकार ये विष्णु और लक्ष्मी देवी अप्रसन्न हो जाते हैं। और इवन 4th कैंटो में वी फाइंड अनदर वंडरफुल एग्जांपल। दक्ष और सती
का जो एपिसोड है आप लोग जानते हैं, उसमें सती शिव जी की पत्नी है और दक्ष की बेटी, और जब एक बार यज्ञ कर रहे थे दक्ष, उस समय शिव जी उठकर खड़ा नहीं हुए, इसलिए दक्ष ने शिव जी का अपमान किया और शिव जी वहां से चले गए। लेकिन उस समय विष्णु और ब्रह्मा भी उपस्थित थे। एक्चुअली दक्ष जब उस सभा में प्रवेश किए उस समय 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लेकिन ब्रह्मा जी दक्ष के पिता जैसे हैं तो उनको माइंड नहीं की, और विष्णु भगवान इसलिए माइंड नहीं की। लेकिन शिव जी दामाद जैसे वो सोचते थे मेरे दामाद है इसलिए मुझसे छोटा है, जरूरी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपराध के शिव जी के चरणों में। तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय शिव जी को इन्विटेशन नहीं दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन उसमें देखिए इस श्लोक के साथ ये इंपॉर्टेंट है जिसमें बता रहे यस्य अप्रसादत नगोति को, जो अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो जाते। देखिए पहली बार यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु ब्रह्म उपस्थित थे। सेकेंड टाइम यज्ञ कर रहे थे, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए विष्णु को निमंत्रण मिलने के बावजूद भी विष्णु नहीं आए। तो देखिए भगवान विष्णु आ सकते थे उस समय सेकेंड टाइम, बट क्यों नहीं आए? क्योंकि शिव जी का अपमान किया। और भी कारण है, भक्त लोग बोलते कभी ससुर दामाद परिवार के बीच में झगड़ा होता है ना, भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं कभी अवॉइड करना चाहिए। हमें अगर पता चलते फैमिली वालों के बीच में झगड़ा विवाद होने जा रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बट एनीवे, ये सती का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते क्या सती बाद में उस यज्ञ अनुष्ठान में आती है शिव जी की माना करने के बावजूद भी। और उस समय सती ये बताते हैं किसको, उनके पिताजी को, कि हे पिताजी मुझे सब लोग दक्षायणी कहते हैं। दक्षायणी मतलब क्या? दक्ष की बेटी। तो मुझे ये नाम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दक्षायणी कहते दक्ष की बेटी, मतलब ये शरीर आपसे मिला इसलिए मैं ये शरीर छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ, क्योंकि आपका साथ मैं किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। और खास करके सती ये बात को कहती है कि क्योंकि आपने जगत गुरु शिव जी को अपमान किया। तो उस प्रकार गुरु के अपमान सती ने सहन नहीं किया। ऐसे नहीं कि उनके पति के लिए, बल्कि एक गुरु है इसलिए उस अपमान को सहन नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं शास्त्रों में कई उदाहरण है कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा मिलने से भगवान प्रसन्न हो जाते। इसका और एक बहुत सुंदर उदाहरण चैतन्य महाप्रभु की लीला से, जैसे प्रसादत भागवत प्रसाद, जो प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते। कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में शची माता जब अपराध करती है अद्वैताचार्य के। ओके, चैतन्य महाप्रभु डेफिनेटली असंतुष्ट थे, क्योंकि सच्ची माता इस प्रकार विचार कर रही थी कि अद्भुत आचार्य की वजह से मेरे दोनों पुत्र संन्यास हो गए। ओके, बाद में क्षमा मांगने के बाद अद्भुत आचार्य ठाकुर से, हाँ, लेकिन उसमें हम देखते हैं और एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल रघुनाथ दास गोस्वामी के देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली ये श्लोक का, कि यस्य प्रसादात भागवत प्रसाद, इसका उदाहरण देखते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी बार कोशिश की घर से भाग जाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए, बार बार। और एक बार तो उनके उनके माँ उनके पिताजी से बोल दिया कि देखो इनको, ये चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो चुका है और इसलिए इनको रस्सी से बांध के नहीं रख सकते। और इन्होंने 2-3 भाग के चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हुई। वो जगन्नाथपुरी में गए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, चैतन्य महाप्रभु चले गए वृंदावन, ये चले गए चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए जगन्नाथपुरी। तो कोशिश करने के बावजूद भी मिल नहीं पाया। और बाद में नित्यानंद प्रभु से उनकी मुलाकात हुई पानीहाटी में। नित्यानंद प्रभु उनको ये चीड़ा दोही महोत्सव जो दंड पनिशमेंट दिया, और उस समय एग्जैक्टली ये नित्यानंद को ये बताया, चोरा कहते हैं नित्यानंद, तुम एक चोर हो। तो नित्यानंद क्या बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है, तो बिना मतलब मेरा परमिशन के बिना तुम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किए, नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है उनकी सेवा की, नित्यानंद प्रभु उनके शक्ति बल में चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी में थे उनको वहां पर बुला लिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये देख पाया
कि जिस चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो पीछे पीछे भटक रहे थे, लेकिन आज नित्यानंद प्रभु की कृपा से दोनों को एक साथ में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो उसमें ये भी होता है क्योंकि नित्यानंद प्रभु है आदि गुरु बलराम जैसे, तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना ये हम लोग कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं। तो इसलिए यस्य अप्रसाद नगति कुतो होती कर्म करे कोई गति नहीं मिलती। इसलिए स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा, ये गुणगान, ध्यान करना चाहिए तस्य आध्यात्मिक गुरु की यश, उनकी गुणगान, जैसे हम गाते उस प्रकार बंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उस आध्यात्मिक गुरु की हम चरण वंदना करते हैं। तो ये ध्यान जब बोलते हैं, कभी कभार भक्त लोग इसको बोलते हैं जो सेकंड इनिशिएटेड ब्राह्मण दीक्षित लोग ध्यान करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है वो भी आध्यात्मिक गुरु ध्यान करते हैं। आध्यात्मिक गुरु के ध्यान इस प्रकार, आध्यात्मिक गुरु की किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर हम याद करते हैं, आध्यात्मिक गुरु के साथ किसी भी मुलाकात को, किसी भी इंटरेक्शन को हम याद करते हैं, इवन आज लेक्चर के थ्रू उनके ध्यान, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डीपली हम सोचते हैं उनके बारे में, आध्यात्मिक गुरु बारे में, इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु हम इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए, इस प्रकार इंस्ट्रक्शन। तो ये ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक गुरु जिस प्रकार हम भगवान के ध्यान करते हैं, मंत्र के द्वारा, मंत्र ध्यान, उसी प्रकार मंत्र मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअल मास्टर के भी मेडिटेशन करते हैं जो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी 3 बार मंत्र के द्वारा, लेकिन जो सेकंड इनिशिएटेड नहीं है वो भी आध्यात्मिक गुरु को ध्यान कर सकते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के द्वारा। और ये त्रिसंध्यम और स्तुवन मतलब ध्यान, स्तुवन, तो ध्यान करने चाहिए आध्यात्मिक गुरु की, एंड देन स्तुवन प्रशंसा, उनके जो गुण महिमा कीर्तन करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें इस्कॉन में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट मैटर है। इस्कॉन में जनरली जब आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा कीर्तन करते हम प्रभुपाद को इंडिकेट करते पब्लिकली, लेकिन कोई अगर आध्यात्मिक गुरु के जो शिष्य हैं उनके सर्कल में गुरु की महिमा कीर्तन कर सकते हैं, गुरु की व्यास पूजन है, अलग अलग मेमोरीज प्रोग्राम में, या उनके अपना सर्कल में कर सकते हैं। लेकिन जनरली स्तुति हम लोग पब्लिकली सिर्फ श्रील प्रभुपाद की करते हैं इस्कॉन में, क्योंकि ये मल्टी गुरु सोसाइटी, इस इंस्टीट्यूशन संस्था को मेंटेन करने के लिए हमें ये जरूरी है श्रील प्रभुपाद की महिमा गुणगान करते हैं। और अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद की महिमा गुणगान करने से हमारे आध्यात्मिक गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए स्तुति जब हम करते हैं हमें श्रील प्रभुपाद की करते हैं। अब देखिए इस्कॉन में जब हम कोई भी क्लास दे रहे हैं, भागवतम क्लास में अगर कोई किसी स्पेसिफिक गुरु के बारे में बोलते हैं, गुरु इस प्रकार है, गुरु ने ऐसी बात है, बाकी अन्य गुरु के शिष्य उतना एंथुसियास्टिक फील नहीं करते। लेकिन जब कोई भी प्रभुपाद की लीला बोलते हैं सभी लोग खुश हो जाते हैं, है कि प्रभुपाद की किसी भी लीला, किसी भी इंसिडेंट, किसी भी फर्स्ट टाइम से बोलते हैं, एवरीवन बिकम हैप्पी, है ना। इसलिए हमें सोसाइटी में रहने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू ग्लोरीफाई श्रील प्रभुपाद पब्लिकली, बट इंटरनली अपने सर्कल में आध्यात्मिक गुरु को महिमा कीर्तन। और एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु की जो इसमें स्तुति होती है, ध्यान, स्तुवन, स्तुति का मतलब ये नहीं सिर्फ पब्लिकली बोलना है। स्तुति ये भी है कि आध्यात्मिक गुरु की जो उपदेश होते हैं इसको अगर हम सही से पालन करते हैं और हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं और बाकी लोग देखिए तब तारीफ करेंगे, देखो ये इस गुरु के ऐसे एक शिष्य है इस शहर में। इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु स्तुति। अब स्तुति जब बोलते हैं ध्यान, स्तुवन, हम आध्यात्मिक गुरु की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी गुण महिमा करते हैं, उनके ग्लोरीज को और बढ़ा रहे हैं। एवे यश भूषुक त्रिभुवन, हम चाहते हैं आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा तीनों लोक में प्रचारित घोषणा हो। लेकिन अगर हम एक अच्छा भक्त बन सके, हम अगर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, डेफिनेटली सब लोग तारीफ करेंगे आध्यात्मिक गुरु के शिष्य के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ते हैं उस समय हरिदास ठाकुर को संबोधन करते हुए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को संबोधन करते हुए कहते हैं कि नमामि हरिदासम तम
चैतन्यम तम चतत प्रभु। ये कहते कि मैं हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ और साथ में हरिदास ठाकुर के प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम करता हूँ। एक प्रकार से हरिदास ठाकुर इतने बड़े भक्त बनने के कारण आज चैतन्य महाप्रभु को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। सब लोग कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर जैसे एक भक्त इष्ट था। तो आध्यात्मिक गुरु के अगर हम अच्छे शिष्य बन सके, उनके इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी लोग आध्यात्मिक गुरु की तारीफ करेंगे। देखो इनके गुरु कौन है। अगर हम अच्छा भक्त बन सके, सबके साथ कोऑपरेटिव हम रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एवरीवन विल आस्क इनके गुरु कौन है। इसको भी पूछते हैं इस भक्ति में गुरु कौन है। सो वंडरफुल डिवोटी, सो नाइस डिवोटी। तो एक प्रकार से उसके द्वारा हम आध्यात्मिक गुरु के रियल ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, रियल स्तुति कर सकते हैं। तो ध्यान, हमें ध्यान करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु की, स्तुति करनी चाहिए, और यश, उनके यश गुणगान करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के यश, ग्लोरी। एंड कब करना चाहिए? त्रिसंध्यम। त्रिसंध्यम का मतलब है कब है? 3 टाइम्स ए डे, त्रिसंध्यम। तो ये 3 चीज क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, स्तुति और यश, उनके जो गुण महिमा कीर्तन, ये 3 चीज कब? 3 बार डेली, 3 बार। त्रिसंध्यम। त्रिसंध्या मतलब, संध्या मतलब जंक्शन। तो त्रिसंध्या माना जाता है कि रात और जो सुबह होते हैं, दिन की जो संधि है, फर्स्ट संधि जो ब्रह्म मुहूर्त, एंड देन दिन में 2 भाग है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। उसके बीच में जो दोपहर की जो संधि है, द्वितीय संधि, एंड देन दिन और रात के बीच में इवनिंग टाइम। तो ये 3 संध्या जो है त्रिसंध्या, हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की ध्यान, उनकी स्तुति और उनके गुणगान ये करना चाहिए, है ना। ये त्रिसंध्या भगवान के लिए भी माना जाते हैं या आध्यात्मिक गुरु के लिए ये जरूरी, क्योंकि ये त्रिसंध्या जो है, जो संधि जो है, संधि के समय खास करके आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना शास्त्र में रिकमेंड किया गया है। सुबह जो संधि है, सेकेंड जो संधि है दिन में, जो दोपहर में, जो सुबह का पार्ट और आफ्टरनून, उसके बीच में जो संधि है उसको रजोगुण का समय माना जाता है। और शाम को जो संधि है, दिन और रात के बीच में जो संधि है, इवनिंग संध्या, शाम, उस संधि की उस समय हमें स्ट्रांगली आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना चाहिए, ताकि हम उस गुणों के द्वारा प्रभावित ना होकर गुणों के ऊपर जा सकते, खास करके इवनिंग में संध्या, क्योंकि वो तमोगुण के समय, और उस समय ये अशुभ जो शक्ति है, भूत प्रेत या जो भक्ति के अपोजिट, जो अशुभ, जो इनऑस्पिशियस, वो प्रभाव ज्यादा बढ़ जाती है इनऑस्पिशियस चीजों। इसलिए उस समय हमें आध्यात्मिक, खास करके आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा, उनके ध्यान ही हमको स्तुति करनी चाहिए। जैसे उदाहरण है भागवतम में, संध्या के समय, इवनिंग संध्या के समय कौन? दीति कश्यप मुनि कामार्थ हो गए थे, और यद्यपि कश्यप मुनि कितने विद्वान थे, वो संध्या के समय क्या करते हैं? आध्यात्मिक गुरु की गायत्री मंत्र जप करते हैं आध्यात्मिक गुरु को, लेकिन उन्होंने कामार्थ हो गए थे, इसलिए उनके गर्भ में कौन आ गया? हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष। तो इसलिए इस संध्या के समय, त्रिसंध्या के समय हमें कुछ भी हो, कभी कभी भक्ति बोलते हम बिजी है, हम समय नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 3 संध्या जो है हमें याद करके रखना चाहिए। 3 संध्या में हमें आध्यात्मिक गुरु की ध्यान, उनकी स्तुति, उनकी गुणमय में कीर्तन करना चाहिए, या भागवत मूलक जो एक्टिविटीज ये करना चाहिए। और इसके शुरू है सबसे फर्स्ट ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त जो है, ये ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं, एक श्लोक जिसमें बोलते हैं, ब्रह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ, है ना, स्वस्थ रक्षार्थम आयुष सर्वर्थ शांत्यार्थम स्मर मधुसूदनम। ये बताते कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु चाहते हैं, उनको ब्रह्म मुहूर्त में
जाकर स्मरच्छ मधुसूदन, भगवान मधुसूदन की स्मरण करनी चाहिए। तो इसलिए उस संध्या जो है, रात और दिन के जो संध्या है फर्स्ट, उस समय हमें आध्यात्मिक गुरु की गुणगान कीर्तन करना बहुत जरूरी है। ये खास करके प्रभुपाद ब्रह्म मुहूर्त के लिए काफी एम्फसाइज करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं कि जो सूर्योदय जो है, सूर्योदय के बताते हैं कि एक घंटा समथिंग 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय के, तो उस समय उठ के आध्यात्मिक फर्स्ट आध्यात्मिक, इसलिए हम एक्चुअली श्री प्रभुपाद की कृपा से पद ऐसे सिस्टम बना दिया फर्स्ट संध्या हम लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक गुरु की गुणगान कीर्तन कर रहे हैं रोज। संसार दबन हम जब भी गाते हैं ये आध्यात्मिक गुरु की गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो एक प्रॉपर नियम बना के शाम को भी एटलीस्ट मंदिर में जो रहते हैं जय जय गोराचार्य आरती का शोभा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और श्रीवास नित्यानंद प्रभु, ये एक प्रकार के आध्यात्मिक गुरु परंपरा के हम गुणगान करते हैं। तो दोपहर में हमें करना चाहिए इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की गुरु महिमा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो फर्स्ट हम ये शुरू करने चाहिए आध्यात्मिक गुरु की जो गुण महिमा, ये बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देवी देवता जो है ये उनके जो रथ लेकर आकाश मार्ग में भ्रमण करते, तो बाकी समय उतना एक्टिवली नहीं रहते। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ये देवी देवता है काफी एक्टिव रहते सुबह, तो समय उनकी कृपा मिल सकती है, भगवान के बहुत बड़ा भक्त है। ये एक भक्त बता रहे थे, अब लोगों ने सुना ये योगी भोगी रोगी, तो उन्होंने बता रहे थे कि जो 4 से 5:30 के बीच में बजे के आसपास वो जोगी है, और जो 6:30 से 8 बजे के बीच में जगते हैं वो भोगी, और 8 से 11 के बजे बीच में वो रोगी है। और बता रहे थे कि 8 से 11 बजे के बीच में जो जगते हैं डेफिनेटली उनको अलग अलग बीमारी हो जाएगी। हमें लगता है चलो कुछ दिन हो जाते हैं उसमें बीमारी कम हो जाएगा, नहीं, असल में बीमार बढ़ जाती है। अब देखिए अच्छा कभी कभी लगता है हम टायर्ड हो गए, चलो सो लेते 1-2 घंटा, संध्या त्रिसंध्या इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा के लिए उठते हैं, देखिए इसका ना कितने डिवोटीज विदाउट फेल, कितना मतलब कितने सालों के साल, मतलब 30-40 साल 50 साल ऐसे कर रहे हैं, दे आर हेल्दी नो। तो ऐसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण देते हैं कि उस समय संध्या के समय कितना इंपॉर्टेंट, ये समुद्र के समय उदाहरण देते हैं कि समुद्र के उदाहरण देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में, अब देखिए समुद्र में कभी भी जाएंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो गार्बेज है समुद्र में, जितने गार्बेज है गंदगी है, ये सब कुछ सुबह आपको देखने में, आप रात को देखेंगे शाम को सब सी बीच में जाते हैं, लेकिन ये कब जाते हैं आपको देखने, एक फोटो है इसमें, ये आपको सुबह देखने को मिलते हैं। सारे गंदगी जो है इसको कब ये निकाल देते हैं, सुबह सुबह के समय। तो ये प्यूरिटीज को हम उस समय कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जिस वक्त समुद्र सारे गार्बेज में निकाल देते हैं, मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने दिसंबर में गिरिराज, रिमेम्बर दैट वन डेड बिग एक्चुअली टॉर्टोइज और समथिंग, है ना, मतलब शाम को भी हम लोग सी बीच में थे, मतलब कुछ नहीं देखा, बट अर्ली मॉर्निंग वी सॉ बिग ह्यूज डेड बॉडी ऑफ टॉर्टोइज समथिंग, है ना, ऑन द सी शोर इन जगन्नाथपुरी, है ना। तो इस प्रकार बताते हैं कि उसी प्रकार मन जो है, मन समस्त प्रकार के जो इम्प्यूरिटीज, अपवित्र जो गंदगी मन में है, ये सब कुछ हम सुबह सुबह के समय ये आसानी से निकल सकते मन में। तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है त्रिसंध्यम, संध्या के समय आध्यात्मिक गुरु की याद करना। तो ये चूंकि इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हमें याद करके रखना चाहिए। चलो त्रिसंध्या हम याद रखेंगे, सुबह जो फर्स्ट संधि, सेकंड संधि, थर्ड संधि हम याद करके जाए तो नोट में डायरी में लिख रखेंगे, 3 समय हम तो गुरुदेव को याद करेंगे।
और वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसमें लास्ट श्लोक जो है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लास्ट में लिखते हैं, ये 8 श्लोक हमने पढ़ा, कंप्लीट हो गया, लेकिन 9th वर्स भी है उसमें, है ना। 9th वर्स भी है जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, श्रीमद गुरु अष्टकम एतद उच्छैर ब्रह्मे मुहूर्ते पठति परियन ब्रह्मे मुहूर्ते। लेट मी जस्ट display one second. So this is very important. We'll finish with this verse. Okay. Okay. So, the 9th verse of Guru Ashtakam is saying, Srimad Guru Ashtakam etad uchhoid ब्रह्मे मुहूर्ते पठति पर्यंतत प्रयत्न यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात् शिवैव लभ्य जानुसु अंत एव। इसमें बता रहा है कि श्रीमद गुरु अष्टकम, ये जो गुरुवाष्टकम जो है, एतत् उच्चार, जो उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं या गाते हैं, कब? ब्रह्मे मुहूर्ते, रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय, पठती थे, और प्रयत्न मतलब प्रयत्न के साथ, अटेंटिवली, इज इंपॉर्टेंट। प्रयत्न जो वर्ड है इसके द्वारा मतलब यत्न के साथ, अटेंटिवली जो ये उच्चारण करते या पढ़ते पाठ करते, उनका क्या है? यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात्, उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवाष्टकम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं यत्न के साथ, तो यस्तेन वृंदावन नाथ, वृंदावन नाथ कौन है? भगवान कृष्ण। साक्षात उस वृंदावन नाथ भगवान कृष्ण के, साक्षात भगवान कृष्ण के चरणों में, सेवैव लभ्य जनसु अंत एव, वो भगवान कृष्ण जो वृंदावन नाथ, उनके चरण में डायरेक्ट सेवा करने को उनको मिलेगा। सेवा प्राप्त करते हैं जनस उस व्यक्ति, अंत एव, कब? एंड ऑफ हिज लाइफ, मृत्यु के बाद। श्रीमद गुरु अष्टकम एतद उच्चारण, ये उच्चारण ब्रह्म अटेंटिवली इसको प्रार्थना कर सके, मीनिंगफुली, और जो करने से सेवैव लभ्य, और वृंदावन नाथ भगवान कृष्ण के चरण में सेवा प्राप्त कर सकते हम लोग, पर अंत एव, जीवन के अंत में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना वो सुंदर गुरुवाष्टकम रचना की कि जिस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चाहते थे कि हम प्रयत्न के साथ पूर्वक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये पढ़े, ताकि भगवान कृष्ण के चरण में हरे कृष्ण। So you'll finish Guruvashtakam done. Hare Krishna. Thank you everyone. आप सबकी कृपा करने का सौभाग्य मिल गया। गुरुवाष्टकम काफी इम्पोर्टेंट है, रोज सुबह हम लोग किसी से दिन की शुरुआत कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये थोड़ा सा लास्ट का आपकी आवाज नेटवर्क की वजह से कट रही थी, तो थोड़ा सा वापस से बता देंगे। लास्ट में कौन सा था, क्या बोल रहा था मैं?
ये जो गुरु अष्टकम सुबह पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भगवान के चरणों की सेवा मिलती है। उसके बाद चक्रवर्ती ठाकुर जी का आपने क्या बताया? हाँ हाँ, ये मैं बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये गुरुअष्टकम लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डेफिनेटली ये जो बता रहे हैं उन्होंने ये जरूर पालन करते थे। रोज सुबह उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक गुरु की ध्यान करते थे, स्तुति करते थे, गुणगान करते थे, और ये प्रयत्न यत्न के साथ अटेंटिवली इसको पाठ करना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भी ये प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा से हम भी ये अटेंटिवली पाठ कर सकें, ताकि हर एक लाइन, हर एक श्लोक जब हम उच्चारण करेंगे हम आध्यात्मिक गुरु की मेडिटेशन कर सके, उनकी स्तुति, उनकी गुण महिमा कीर्तन कर सके। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Somebody's raised the hand, Prabhuji. Yeah. सुंदर बर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रधान प्रणाम। हरे कृष्णा सुंदर बर। हरे कृष्णा प्रधान प्रणाम। यस, दंडवत। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मंदिर में रहते हैं तो सुबह मंगल आरती होता है तो गुरुवास्तव हम गाते हैं, लेकिन दोपहर और शाम को तो इस तरह से हमको मौका नहीं मिलता है। और तो इसलिए दोपहर में जैसे 12 बजे और शाम को तो संध्या आरती पे, तो उस टाइम में कैसे गुरु को हम प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं? हमें एक्चुअली बीच में बताया था, जो जैसे ब्राह्मण इनिशिएटेड है, सेकंड दीक्षा हो चुके, वो लोग डेफिनेटली 3 बार करते ही है, तो उसमें गुरु मंत्र भी है, तो उसमें गुरु मंत्र भी है, तो उसके द्वारा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ना। लेकिन जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, सेकंड इनिशिएशन नहीं हुआ अभी तक, तो सुबह तो करते ही आध्यात्मिक गुरु गुण महिमा। इवन शाम को भी अगर देखते हैं, शाम को भी देखते हैं, जैसे घोर आरती कीर्तन करते हैं। घोर आरती में हम नित्यानंद प्रभु की वशी दक्षिणे निताय चाँद वामे गदाधार, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद उनकी गुण महिमा कीर्तन करते हैं। और इवन हम शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आरती में करते हैं, तो उस समय हम आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा कीर्तन करते हैं। लेकिन अगर मौका नहीं मिलते, क्योंकि इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, तो हम 3 बार याद करके आध्यात्मिक गुरु की कुछ आप एक लेक्चर भी सुन सकते हैं, या अलार्म देके रखेंगे ये 3 टाइम से। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह तो हो गया ऑलरेडी, दोपहर में 12 बजे के, शाम को 6 बजे या 7 बजे अलार्म देके रखेंगे। उस समय हम गुरु महाराज के किसी भी एक कोट पढ़ेंगे आध्यात्मिक गुरु के, या उनके कुछ लेक्चर के क्लिप सुनेंगे। तो एक प्रकार से आपको 3 बार ये मेडिटेशन हो जाएगा आध्यात्मिक गुरु की। तो इस प्रकार से कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड हाँ, तो इससे अलग अलग तरीके से आध्यात्मिक गुरु की गुणों में कीर्तन कर सकते हैं। चलो हम एक किसी लेक्चर सुनेंगे और लेक्चर को ट्रांसक्राइब करेंगे, उस लेक्चर को लिखेंगे 10 मिनट के लिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की गुण महिमा कीर्तन कर सकते हैं संध्या 3 बार। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। स्वाति माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। में एक क्वेश्चन था कि जैसे बाकी सारे इस्कॉन टेम्पल में तो गुरु अष्टकम होता है मंगला आरती में, बट वृंदावन में तो विवाह विशेष होता है, तो वहाँ ये आरती क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे याद भी वही है, अधिकतर वृंदावन ही जाती हूँ, रहती हूँ, तो वो करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या वो वहाँ पे ये वाली आरती क्यों होती है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये जब वृंदावन जाएंगे सिर्फ वहाँ करना है, घर पे नहीं, बाकी अन्य मंदिरों में भी नहीं, क्योंकि ये इस्कॉन के जो जीबीसी है, बाकी सब लोगों ने डिसाइड किया, इस्कॉन के प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य लोगों ने, क्योंकि प्रभुपाद समाधि मंदिर है ना, इसलिए प्रभुपाद समाधि मंदिर में आरती जरूरी है। तो प्रभुपाद के सामने सबसे बेस्ट संसार दवाने लगाना है, क्योंकि संसार दवाने प्रभुपाद के मंदिर में करते हैं, फिर भगवान के सामने आके दोबारा नहीं गा के उस समय भगवान कृष्ण की गुण महिमा कीर्तन करते, खास करके सुबह भगवान कृष्ण बलराम क्या करते, इसलिए उस समय ये विवाह वरिष्ठ का इस्कॉन के लीडर्स जो है
उन लोगों ने आयोजन किया। विवाह वरिशेष आलोक प्रवेश, जब आलो मतलब ये सूरज की किरण प्रवेश करते उस समय कृष्ण बलराम क्या करते, तो चूंकि ऑलरेडी उसमें करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, सबसे पहले बल्कि संसार दबाना नहीं करते, ये विवाह वरिशेष से पहले। और ये सिर्फ वृंदावन में नहीं, मायापुर में भी प्रभुपाद समाधि मंदिर में गाते हैं, लेकिन मायापुर में समाधि मंदिर में ये दोनों ही गाते हैं, समाधि मंदिर में संसार दामन लगाते हैं और फिर मेन मंदिर में संसार दामन लगाते हैं। तो मायापुर में दोनों जगह में संसार दामन, क्योंकि मायापुर में ये दूर है थोड़ा, क्योंकि समाधि मंदिर से मेन मंदिर दूर है। जब तक वृंदावन में एक्चुअली ये मतलब एक ही कैंपस में, इसलिए संसार दमन करके एक ही ऑडियंस रहते हैं, लेकिन मायापुर में अलग अलग ऑलरेडी समाधि मंदिर का अलग ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहाँ पे अलग पुजारी, अलग ब्रह्मचारी टीम है वहाँ के लिए, तो वहाँ पे मंगल आरती करते हैं और उसके बाद मंदिर में भी करते हैं विग्रह के सामने। एंड इवन भुवनेश्वर मंदिर में भी है, तो और भी बहुत जगह में एक्चुअली भुवनेश्वर मंदिर में विवाह वरिशेष करते हैं, वृंदावन मंदिर जैसे वो लोग गौर गोविंद महाराज के समाधि मंदिर में संसार दामन करके वहाँ पे विवाह वरिशेष करते हैं। तो अलग अलग मंदिर में करते हैं, बट संसार दामन डेफिनेटली मस्ट, ऐसे नहीं कि वो नहीं करके सिर्फ विवाह वरिशेष करते, नहीं, सभी मंदिरों में फर्स्ट और फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट संसार दामन, उसके बाद बाकी कुछ करते हैं। थैंक यू जी। तो हमको घर में ये गुरुवाष्टकम वाली ही करनी है? हाँ, घर में सिर्फ गुरुवाष्टकम करनी, और उसके बाद आपको इच्छा था विवाह वरिशेष कर सकते, और भी भजन है, उदिल ओरिन पूर्व भागे, जीव जागो गोरा छादो बोले। सुबह जो है ना, ये चैतन्य महाप्रभु सुबह क्या करते थे, कृष्ण क्या करते थे, हजारों भजन है, लेकिन अच्छा है गुरुवाष्टकम करके जप करना अच्छा है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी, हरे कृष्ण। सॉरी। हरि बोल। Okay, so I think should stop here. Krishna. Thank you so very much, रसानंद प्रभु। आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और पूरा गुरु अष्टकम हमारा हो गया, बीच में ब्रेक भी हो गया था, बट स्टिल वी गॉट गोइंग, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी थैंकफुल टू रसानंद प्रभु। एंड लाइक आई टोल्ड यू, प्रभु जी की 7:30 क्लास खत्म होती है, देन ही कम्स, जस्ट हॉप्स इन हियर, सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, एंड कृष्णा विलिंग we will find some ways to tie Prabhuji again for giving us some association. So hopefully I'll discuss with him tomorrow. So we'll chant aloud Hare Krishna Mahamantra to thank Rasanand Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, हरे राम हरे राम Hare Hare. Rasanand Prabhu ki jai, jai Srila Prabhupada ki jai. With the work of the key, go to Manande. Hare Krishna. So thank you everyone for joining us in the session, और I hope कि आप सब लोगों ने सारे सेशन सुने हो, एंड हम जब सुबह गुरु अष्टकम करें, so some feeling, some bhav comes, at least we know what does the mean of all these paragraphs. So, and Krishna willing, we will start some other topic from next Friday. So thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thanks so much, Prabhuji. Dandavat pranam. Krishna Dhanasana Mataji. थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।